as an individual to a VP of a top real estate broker company and that to a multimillionaire. तो ये journey जो है आपकी, so how's the feeling? How are you feeling? Hi, this is Fahad Ali and I'm going to be the host for the most awaited series DNS Souls. And our first guest will be Mr. Danish Khan, Vice President of Sales at DNS Homes Real Estate, also known as the Kingmaker. So Danish bhai, welcome to the first episode of DNS Souls. और I am very happy कि हम start आपसे कर रहे हैं. So as an individual to a VP of a top real estate broker company and that to a multimillionaire. तो ये journey जो है आपकी, so how's the feeling? How are you feeling? Hi Fahad, thank you for inviting me, and it's an honor to kickstart this new series which we are hosting, our company is hosting. So it's very honorable for me that I am a part of this company. The feeling is very very surreal. कभी मैंने सोचा नहीं था, even in the wildest of my imagination, that I will be one of the co-members of such a big company and be associated with such good people. But it's all thanks to Allah, and Anshul and Akansha हैं, उनकी वजह से ही हूँ जो आज मैं हूँ. And we are sitting across the table and discussing my journey. So let's start from the beginning. मतलब दुबई आने से पहले आप क्या कर रहे थे, क्या आपकी लाइफ थी, दुबई कैसे आए, कब आए? So ever since, so I'm basically from Bombay. Okay. Born and brought up in Bombay. Full education has been in Bombay. So I was ever since my graduation, I was just doing my own business. पहले खुद का business कर रहा था Bombay में. Then after that, in the year 2019, I shifted to Bangalore. Bangalore में I was running my own restaurant there. It was a good big restaurant, अच्छा चल रहा था. And then unfortunately, or I would say fortunately, if I look at it from now, कि कोविड आ गया. कोविड में क्या हो गया, देन मेरी जितनी भी सेविंग्स थी इस बिजनेस में मैंने डाल दिया था. एवरीथिंग वेंट डाउन, सब तबाह हो गया था. जैसे बता रहे हो, सब कुछ आपका रेस्टोरेंट, आपका बिजनेस, जितनी आपकी सेविंग्स थी सब चली गई. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एट दैट मोमेंट आपके दिमाग में क्या चल रहा था? कि यार फहद, ऑनेस्टली पता नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है. आई मीन बिकॉज एवरीथिंग वाज सो chaotic. We were lucky कि हम लोग जिंदा थे, बट यस टेंशन तो बहुत थी दैट कैसे सर्वाइवल होगा. बट एक चीज था, अल्लाह पे यकीन था. 2021 में I came to Dubai. My journey in Dubai was very unexpected because as I told you कि business कुछ नहीं था. A very very close friend of mine, he's based out of Dubai, so he told me कि why don't you come and try the real estate industry here. So I said, why not? What is there to lose? Because सब कुछ तो गवा ही दिया था. तो I could not sink even further. तो I knew कि मुझे bottom से start करना है. But yes, I came here and then it's been very good. ओके, आप दुबई आ गए. दुबई में योर फ्रेंड कन्विंस्ड यू टू डू रियल स्टेट. मतलब रियल स्टेट ज्वाइन करने के लिए क्या मोटिवेट किया? ऑफ कोर्स मनी वाज देयर, बट सेकेंडली आपने किस तरीके से शुरुआत करी? आई लेफ्ट इट टू माई फ्रेंड कि भाई तू मुझे बता कहाँ करना है. तो वन ऑफ द टॉप डेवलपर्स ऑफ दुबई, उसने मेरी इंट्रोडक्शन एक पर्सन हु इज एट अ वेरी वेरी हाई पोस्ट, सो ही मेड मी इंट्रोड्यूस्ड टू हिम. ही मेड मी गो टू हिम. उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया. बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने द कंपनी जो थी, जो डेवलपर थे, दे हैड स्टॉल्ड ऑन देयर रिक्रूटमेंट. ओके. तो वो मुझे बोले कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा कि तुझे कंपनी में ज्वाइन करवाने के लिए. आई सेड ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल वेट. सो दिस वाज इन अक्टूबर 2021 दैट आई केम टू दुबई. 1-1.5 महीने ऐसे ही बैठा रहा, कुछ करने के लिए नहीं, काम वाम कुछ नहीं था. ही सजेस्टेड टू मी, द पर्सन हु इज देयर इन द डेवलपर, ही टोल्ड मी कि तू एक काम कर, तू in the meanwhile you join an agency. तो I said no problem, मैं तो इधर पैसे कमाने आया हूँ, चाहे इधर हो चाहे कहीं हो, I need to run my show. That's how I met Anshul. Okay. मेरा उनके साथ इंटरव्यू एकदम शॉर्ट था. It was just a 2-minute इंटरव्यू. वो मुझे बुलाए, हम लोग डेवलपर के ऑफिस में, कैबिन में ऐसे बैठे थे. He called me and he said, अच्छा मुझे अपने बारे में बता. मैंने अपने बारे में से थोड़ा बैकड्रॉप दिया. He said चल ठीक है, तो एक काम कर, कल से आ जा काम पे. He said you wait here. Akansha है, so that point of time Akansha was a team leader. Okay. She was running a team. So he said कि तू आजा, I'll put you in Akansha's team. Group सूप में सब join किए. She said you come tomorrow and then join. आपने ज्वाइन किया रियल स्टेट. सो आपने मेंशन किया कि एजुकेशन के बाद यू आर डूइंग योर ओन बिजनेस, तो आपको रियल स्टेट का आर भी नहीं पता होगा. करेक्ट. ठीक है. तो जब फर्स्ट डे आपने ज्वाइन किया एज एन एक एजेंसी में, तो
क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए उस टाइम? बीइंग अ फ्रेशर, बीइंग अ न्यूबी, एक तो मुझे और बहुत डाउट हो गया था कि यार ये मैं करूँगा कि नहीं करूँगा. सामने बैठा हूँ, दूसरा बंदा पिच कर रहा है प्रोजेक्ट, ऐसे कॉलिंग हो रही है, मुझे तो पता भी नहीं था भाई कॉलिंग कैसे होती है. तो आई वॉज वेरी वेरी नर्वस कि यार ये कॉल. एंड प्लस व्हाट हैपेंस फाद इज कि आप कुछ चीज कभी किए नहीं हो लाइफ में, बिल्कुल, एंड यू कम एंड यू आर बेसिकली पुट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, तो तुम्हें एक कॉन्शियसनेस फीलिंग हो जाती है. ऑफ कोर्स, कि फॉर एग्जांपल मैं बैठा हूँ, बाजू में कोई बैठा है, ही इज एबल टू कॉल, अगर मैं नहीं सही से कॉल पर है, व्हाट विल दैट पर्सन थिंक ऑफ मी, कि मैं सही से करा रही, इस बेवकूफ को तो कुछ पता भी नहीं सही बात, क्या कर रहा है. सो मुझे बहुत कॉन्शियसनेस हो गई थी फिर. सो व्हाट आई डिड दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज कि मैं नीचे गया, जो पार्किंग लॉट है, मुझे पेपर मिला था डेटा कॉल करने के लिए, तो मैं वो पेपर नीचे जाके मैं वैसे कॉल कर रहा था, एक पेपर लेके आई वाज जस्ट कॉलिंग. क्लाइंट मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था, मैं जवाब नहीं था, मैं बोला आई कॉल यू बैक. बट देन आकांक्षा कॉल्ड मी, वो बोली कि तुम भाई कर क्या रहे हो, ऊपर आओ, ऊपर बैठ के कॉलिंग करो. सो then she told me how to call, how to pitch. It took me 1-2 days to understand कैसे चल रहा है. First day obviously was very weird. Second day I got comfortable calling. Third day again I got more comfortable calling कि भाई कैसे calling होती है. ठीक है. So you started calling on the third day. Yeah. चलिए calling चल रही है, बट जो रियल एस्टेट की मेन चीज होती है, to crack a first deal, how did you do that? I think Allah has been very very gracious on me, सच बताऊं, because ऐसे ऐसे लोगों से मैंने स्टोरी सुनी थी कि 3-3, 4-4, 5-5 महीने तक ज्वाइन करके कोई क्लोजिंग नहीं होती है, लगे रहो. सो ऑन द थर्ड डे आई वॉज टॉकिंग टू दिस लेडी. उनको एक नया प्रोजेक्ट आया था मार्केट में, तो आई वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग दैट टू हर. फ्रॉम द कॉन्वर्सेशन आई अंडरस्टूड कि हाँ ठीक है, इसको इंटरेस्ट है. मैंने बोला मीटिंग के लिए आ जाओ. बोली ठीक है, मैं आज आ जाती हूँ. देन शी स्टॉप्ड पिकिंग अप माई कॉल. Okay. Every day I was chasing her कि मैं कॉल कर रहा था, मैसेज कर रहा था, जवाब नहीं आ रहा था. मैंने यार ये क्या हो रहा है यार, एक तो मुझे गोली दे दी है इधर चने पे के झाड़ पे चढ़ा के. Then she's not picking up my call only at all. Then on the 6th day I was calling again. She picked up my call. She said, Danish, I'm very very sorry. I apologize कि I've not been able to pick up. My daughter was unwell, इसलिए मैं नहीं आया. तो मैं बोला मैम, if you're free why don't you come down? शी सेड ठीक है, आज मैं फ्री हूँ, मैं आज आ जाती हूँ. वो आई मीटिंग करने के लिए. सो इट वाज माय फर्स्ट मीटिंग इन रियल एस्टेट. ओके. एक ही प्रोजेक्ट मुझे आता था और कुछ मुझे पता ही नहीं था. ठीक है. शी केम, शी सैट इन द मीटिंग, कन्विंस किया, एंड सेम डे वो मुझे चेक दे दी. आई विल गिव यू अ वेरी वेरी गुड थिंग इन दिस ऑल्सो. तो उसको कन्विंस करने गए थे. सो शी वाज देयर इन द प्रोजेक्ट, वो देखी, सब कुछ पसंद आया. आई सेड पेमेंट चाहिए. तो जो डेवलपर का जो आ रहा है ना, यूनिट्स नहीं थे, बिकॉज उस टाइम असाइनमेंट हुए थे, यूनिट्स नहीं है, जेन्युइनली नहीं थे. तो बोली कि शी सेड मैं ऐसे कैसे पेमेंट दे सकती हूँ. आई सेड मैम एक ही यूनिट है, ये आपको चाहिए तो हम आपको दिलवा देंगे. हर हस्बैंड हैड गॉन टू द अबू धाबी ग्रांड प्री, फॉर्मूला 1 का ग्रांड प्री हो रहा था. ओके. तो ही हैड गॉन देयर. शी वाज कॉलिंग हिम टू टेक हिज परमिशन टू गिव द मनी. उसने फोन नहीं उठाया. शी कॉल्ड अप द ड्राइवर. ओके. ड्राइवर ने अंदर जाके उससे बात करवाई. ही सेड तुम्हें लेना है तुम ले लो. ही सेड दानिश ठीक है पेमेंट करूं, बट मैं चेक नहीं लिया. ऐसे नो प्रॉब्लम है, मैं आता हूँ आपके साथ चेक लेने के लिए. आई वेंट टू हर हाउस, आई कलेक्टेड द चेक एंड देन आई गिव द चेक. दैट इज हाउ माय फर्स्ट डील वाज डन. एंड शी सेड कि मैंने कभी जिंदगी में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं ली है, सो हैपहैज़र्डली एंड अंडर सो मच टेंशन. Fast forward to today, this was in the year 2021. Fast forward to today, she paid till now on that property. That property was say about 1.6 million की थी. उन्होंने उसका 50% पे किया है. Okay. 8 लाख ही पे किया उन्होंने. Now she's getting a resale of 3.3 million for that. So आज की तारीख में she's saying कि तुमने भाई मुझे चांदी दिलवा दी. Nice. So like 6th day you cracked your first deal. Yeah. Like जितने भी अगर आप रियल एस्टेट एजेंट्स देखो, दे स्ट्रगल अ लॉट. महीनों उनकी कोई डील नहीं होती. एंड यू क्रैक ऑन द 6th डे. तो आप मतलब ऑफ कोर्स काफी मोटिवेटेड तो हो, फील कर रहे होगे कि लाइक इट्स अ पीस ऑफ केक, समथिंग लाइक दैट. आती है सबके मन में फीलिंग आती है. तो उसके बाद क्या जर्नी रही?
6 दिन में फर्स्ट टाइम रियल एस्टेट एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम मतलब टाउन हाउस क्लोज करना मतलब बहुत बड़ी डील हुई, मैंने दैट गिवन 2021 मतलब बहुत बड़ा पैसा हो जाता। तो फर्स्ट टाइम तो मैंने कन्वर्ट किया कि भाई मुझे कमीशन कितनी आने वाली है, कि यार ये आ रही है। फिर कॉन्फिडेंस ऐसा हो गया कि मैं बोले यार 6 दिन में एक बंदा कोई क्रैक कर सकता है, डील कर सकता है, तो मैंने इट्स अ पीस ऑफ केक। ऑफ कोर्स, मतलब ये तो मैं कितने भी बेच लूँ, इतना कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंस था, जो समझना आपको समझो, मेरी कोई डील नहीं उसके बाद। 6 दिन में फर्स्ट डील, द नेक्स्ट डील विच हैपेंड टू मी वाज इन मार्च, सो 3 मंथ्स के बाद मेरी सेकेंड डील। आई वाज सो डिमोटिवेटेड कि होगा कि नहीं, एम आई इन द राइट लाइन और एम आई नॉट इन द रॉन्ग लाइन, बिकॉज ऑब्वियसली सेल्फ डाउट आते हैं। बिल्कुल। बट आकांक्षा हैज बीन द पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। एवरी टाइम आई यूज्ड टू गो टू हर, ऐसे कि मेरा नहीं हो रहा है, शी सेड हो जाएगा, डोंट वरी, हो जाएगा। एंड तभी मार्च में सेकेंड मेरी डील हुई। फिर वापस से रिलीफ आया कि हाँ चल ठीक है, मेरी PIP तो इशू नहीं होगी, मेरी सैलरी तो आ जाएगी। तभी फिर हो गए थे यार भाई सैलरी इज मोर इम्पोर्टेंट देन। सो या फिर उसके बाद मार्च में डील, देन कंटिन्यूस मेरी डील्स होती रही। In the month of May, I need to tell this because this is a very important part of my journey and a very important part of my life. Like a turning point for you. A turning point, I would say. मैंने एक नियत की थी कि आया हूँ इधर तो उम्रा करने जाऊंगा। रमजान का तभी टाइम आ गया था। So मैं गया, I said मुझे किसी भी हालत में I need to go for उम्रा। So मैंने प्लान बनाया उम्रा जाने के लिए, just me, तो मैं अकेला गया। Once I came back from Umrah, मेरी जो किस्मत चेंज हुई है, it is only and only because of Allah. Okay. मैंने तब से every उम्रा रमजान मैं I make it a point कि मैं उम्रा करने जाऊँ। Every year, it's been like 4 years. This is the 5th year. मैं इंशाल्लाह हर साल मैं उम्रा करने जाता हूँ। And I think it is the belief and it is only because of Allah कि I am here right now. Of course. So लेट्स गेट टू दिस के जब आपको पता चला कि अंशुल एक DNS कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो व्हाट वाज योर थॉट कि ज्वाइन करूं नहीं करूं, लाइक क्या चल रहा था उस टाइम, उस आपके दिमाग में क्या चल रहा था? बिफोर ज्वाइनिंग DNS ऑल्सो आई जस्ट टेल यू कि व्हाट माई इक्वेशन इज विद अंशुल एंड आकांक्षा। तो as I told you कि उसके बाद उम्रा के बाद things turned around for me. मैं on a month basis I was doing multiple deals, 6-8 deals on an average month on month में कर रहा था। So in January, Akansha came to me and she said कि Danish, I'm thinking of promoting you. Oh, nice. She said कि I want you to obviously work under me only, but I want you to train people under you. I want you to be a sub leader under me, train people and groom people because I know कि तुम कर सकते हो. That gave me a lot of confidence because I was the first leader or sub leader, I would say, in the company. There were many people who were more experienced than me, Okay. who had come before me, who were doing business probably more or not more, I don't know. बट मैं उनके नीचे आया, उनके बाद आया, फ्रेशर आके, एंड आई बिकेम द फर्स्ट लीडर्स और सब लीडर इन द कंपनी. सो दैट वाज गिव मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन. तो व्हेन वी केम टू बिफोर DNS, मेरी टीम थी, वी हैड ओनली 2 people इन द कंपनी, मतलब इन माय टीम. उसके बाद वी ग्रू टू आई थिंक अबाउट 5-6 लोग थे. तो व्हेन अंशुल केम एंड टोल्ड मी कि यू नो ऐसे सोच रहे हम करने के लिए, there was no self doubt, there was no doubt at all कि भाई कि नहीं करना है. जो अंशुल बोलेगा कि भाई इधर करना है तो have to do it. Okay. So मतलब आंखें बंद करके चलना है, मतलब हाँ, बिकॉज फाद देखो, एज आई टोल्ड यू कि मुझे पता नहीं था कि क्या रियल एस्टेट होती है. बस मुझे एक पता था, एक बंदा है अंशुल सिलवानी, उसके पीछे करते रहो, लगे रहो. अंशुल के बारे में बहुत सारी स्टोरी सुनी थी कि यू नो ही टर्न्ड पीपल इनटू मिलियनेयर्स एंड, बट दैट इज फ्रॉम द प्रोफेशनल फ्रंट. जो मेरी अंशुल के साथ बॉन्डिंग हुई थी, इट वाज मोर लाइक अ ब्रदर. जब भी कुछ गए तो यू नो मजाक मस्ती करना, ऐसे लगता ही नहीं था ही वाज द CEO ऑफ द कंपनी. एग्जैक्टली. इट वाज मोर टुवर्ड्स कि यार पता ही नहीं है कि ही ओन्स द कंपनी.
or he's basically the partner of the company. तो when he told me कि आना है, I knew कि जहाँ पे भी जाऊँगा पैसे ही कमाऊँगा, I'll be successful because I trust his vision. I know what he thinks of us. He thinks more for us than what he thinks for himself. Of course. तो जब भी उन्होंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे करना है, सर बॉस आप जहाँ बोलो करना है, आप कुएं में कूदने के लिए बोलोगे मैं कूद जाऊंगा, क्यों मुझे पता है कि अगर कूदूंगा कुएं में तो नीचे सोना ही होगा, बिल्कुल खाली कुछ नहीं होने वाला है. So that is how much I trust him and that is how much I know that he will think about us rather than for himself. ठीक है. So like you told me like you started with 2 people as a sub leader. Yeah. अब आपकी टीम में around 20 Correct. लोग हैं और all of them are doing good in DNS. Alhamdulillah. So like उनके क्या क्या achievements हैं, आप अपनी टीम कैसे describe करना चाहते हो? यार फर्स्ट स्टार्ट किए थे 2 लोग से, वो पार्ट ऑफ द टीम, मतलब दे आर फ्लरिशिंग आई वुड से. एक मल्टी मिलियनर हो गई है, Nice. साथ में मेरी वाइफ भी हो गई है. दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट आई हैव इन द कंपनी कि मुझे मेरी वाइफ मिल गई. Congratulations. थैंक यू. एंड apart from that I've got a person जो international में he is doing wonders, so we have our road shows, he's just killing it out there. There's one more person who's become again a team leader in the company. Nice. एक और है जो सब लीडर बन गए हैं. So it feels very very good and I want them to grow because वो ग्रो करेंगे तो yes I will have a part to play in their journey, which is very very proud for me कि मतलब मेरे नीचे बच्चे ग्रो होके इतना सब अच्छा कर रहे हैं and this is what I want for everyone. And also this proves that you are a kingmaker. Yeah. My team is called Kingmaker. So proudly I can say yes I am making kings Of course. or queens. But it feels very very good कि लोग इतना सब कर रहे हैं अंडर and I want everyone to succeed. अच्छे बच्चे मिले हैं टीम के अंदर जिनको वो जज्बा है काम करने का, who are motivated enough to to work and to earn money basically, and that's good, feels good. So दानिश भाई, जैसे आपने बताया कि मेरे को कि you found your wife here in DNS and that is your biggest achievement. तो मतलब आप अपना पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कैसे बैलेंस कर रहे हो DNS में? या सच बताऊं और अगर ये अनफिल्टर्ड है तो बोला लाइफ झंड हो गई, सच बताऊं. क्योंकि दिन में भी साथ में, रात में भी साथ में. Okay. बट लकीली फॉर मी मुझे प्रॉब्ली बेस्ट वाइफ मिली है. वेरी अंडरस्टैंडिंग, वेरी अकोमोडेटिव, और उसको एक लालच में देता हूँ कि भाई मुझे काम करने दो बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे काम करूँगा कमाऊँगा तो दोनों तो तुम ही तो खर्चा करोगी और किसके ऊपर खर्चा. बट जोक्स अपार्ट शी इज़ वेरी वेरी सपोर्टिव. She knows because obviously it's very important कि पता हो कि क्या काम कर रहा है बंदा. And what best than the person who's in the same line of work, who knows what is going on कि काम कैसे होता है. So she is very accommodative. So इतना वैसे बैलेंस करने के लिए होता नहीं है because we are together only. दिन में साथ में होते हैं तो we go for meetings together, रात को साथ में हम लोग घूमते हैं. So everything it's, and once you make your wife your best friend then it's just a piece of cake कि everything just seems normal. Of course. और ये चीज पूछना चाहता हूँ दानिश भाई आपसे कि मतलब DNS आपने ज्वाइन किया, यू आर लीडिंग अ टीम, सब कुछ अच्छा हो रहा है, मल्टी मिलियनियर, सब कुछ अच्छा हो रहा है, बट ऐसा कौन सा मोमेंट था DNS में जहां आपको लगा कि हाँ बस अब यही मेरी जगह है, यही है जो मेरे को करना है और फ्यूचर में भी लाइक इसी से ही मेरा सब कुछ हो सकता है? Fahad, I'll tell you कि जब भी कंपनी ज्वाइन किए थे इट वाज अ बिग स्ट्रगल. ओके. 6 महीने आई थिंक हमारा ऑफिस नहीं था, हम लोग एक डेवलपर के ऑफिस में बैठे थे. बट यस आई ट्रस्टेड द विजन ऑफ द पर्सन. मुझे पता था कि अंशुल एंड आकांक्षा जो भी डिसाइड करेंगे हमारे लिए बेहतर के लिए होगा. 6 months वर वेरी वेरी टफ बिकॉज ना तो कमीशन आ रही है. कमीशन हमारी प्रीवियस कंपनी में होल्ड हो गई थी कि कब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके जैसे तो पैसे तो थे नहीं. बट यस पता था कि हो जाएगा. बट जो लोग तभी भी हम लोग को रिस्पेक्ट से बात करते थे स्पेशली डेवलपर वाले,
हम लोग डेवलपर के ऑफिस में बैठे थे, तो द रिस्पेक्ट विच वी वर गेटिंग दैट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, आई न्यू कि विदाउट हैविंग एनीथिंग इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो जब हमारी इस्टेब्लिशमेंट होगी, जब हमारा अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड और फुट होल्ड हमारा होगा, तो क्या हमारा होने वाला है. व्हेन आई रैन द टीम, यू नो, एंड जो मेरे टीम के अंदर बच्चे जो आए थे, उनकी डील होने लग गई, एंड व्हेन आई वाज एबल टू गेट देम टू अ लेवल where they could do their own things without being reliant on me or without relying on anyone else. So एक दो बच्चे मेरे पास आके बोले कि आपकी वजह से हमारा हो रहा है. कभी नहीं सोचा था कि हम लोग ऐसे करेंगे, कभी नहीं सोचा हम अपनी खुद की डील्स करेंगे, कभी नहीं सोचा था हम इतने लाख कमा लेंगे. Once they came to me and they said that you made a difference in my life, I knew कि भाई मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है. Because getting the loyalty and getting the trust, that is what's the most important for me. पैसे तो आते जाते रहेंगे, वो तो अल्लाह दिया है, अल्लाह इधर लेके अल्लाह आगे भी देते रहे, बट जो लॉयल्टी है, एंड आई विल टेल यू, अंशुल एंड आकांक्षा फ्री हैंड दे देते हैं, ना पूछते कि कब आ रहे हो, ना पूछते कब जा रहे हो. भाई तेरा ऑफिस है, तुझे जब आना है तू आ, तुझे जब जाना है तू जा. एक चीज समझ कि तू ही मालिक है इस कंपनी. यू रन हाउ एवर यू वॉन्ट. सो द टीम विच आई एम रनिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अंशुल एंड आकांक्षा जस्ट आस्क मी मंथ के एंड में कि भाई बिजनेस कितना हुआ, कौन कैसे जा रहा है. दे डोंट आस्क मी कि क्यों ऐसे कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है. दे लीव इट ऑन मी. कौन ही ऐसा फ्रीडम देता. आप एक बात बता. सही बात है. अपने हिसाब से चलाओ, विदाउट ओनर इंटरफियरिंग, विदाउट द मैनेजिंग पार्टनर इंटरफियरिंग. कौन आज की तारीख में ये करता है? जो आज के टाइम पे डीएनएस ज्वाइन कर रहे हैं जो लोग, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी 2 साल हमारी हो चुके हैं, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हो? To all the people who think of joining real estate or who think of joining DNS, आपको सिर्फ एक चीज बता सकता हूँ कि कंपनी तो बहुत बड़ी हैं, हम तो उनके सामने चींटी हैं basically. If you look at the elephants which are there in the market and the kind of transactions which they are doing, like you know, every other day I see कि 200 million, 300 million, 400 million की properties बिक रही है. I don't know how true they are, but यार मेरी इंस्टाग्राम की फीड पे वही आता है 200 मिलियन. तुम्हें तो लगता है कि अल्लाह आप ऐसे एंड दे रहा है कि भाई अभी तुझे भी 200 मिलियन बेचना है, बट देयर वुड बी मेनी कंपनीज जो आपको ऐसे होंगी. बट आपको जो इन्वायरमेंट इधर मिलता है ना, इज मोर टुवर्ड्स लाइक अ फैमिली. एक्सैक्ट. कि आप जितने भी लोग को देखोगे जो डीएनएस में टिके हुए हैं, जो कर रहे हैं, यस मनी इज इम्पोर्टेंट, अग्रीड, बट the vibe that you get out here or the bonding which you get out here, it's basically you have a family away from your country. Exactly. आप एंटर करते हो, यू नो, अंशुल है, वो उनके कैबिन में कभी भी चले जाओ, कभी भी बात करो. नॉट मी बीइंग अ VP of the company, being a leader of the company, I know I can go any given point of time, but even if you are working under my team or anyone else's team, you have access to the owner. Exactly. He is more like a friend than he's the owner. Akansha, you can go to her at any given point of time, call her even at 12 AM in the night. अगर वो सो रही भी होगी तभी भी फोन उठाएंगे, बोलेंगे हाँ बोलो क्या है. 2 बजे भी कॉल करो कि भाई मुझे ये चाहिए, हाँ ओके हो जाए. एंड मेन थिंग इज दे आर सपोर्टिंग यू. तुम्हारी डील नहीं हो रही है, ऐसे नहीं कि तुम्हारी सैलरी रोक देगी. यस ऑब्वियसली यू हैव, यू आर इन द सेल्स, यू नीड टू जस्टिफाई द नंबर. Of course. आफ्टर a few months अगर नहीं होती, गॉड फॉरबिड, वो आपकी सैलरी होल्ड करेंगे. दे विल नॉट स्टॉप इट. जैसे आपका ट्रांजैक्शन, जितनी भी सैलरी है, जितना भी आपका ड्यू है, सब आपको मिल जाएगा. गॉड फॉरबिड आप कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन करिए. लोगों का होता है कि कमीशन नहीं निकालते हैं, ये नहीं देते हैं. 3-3, 4-4, 6-6 महीने के बाद भी जब ये ड्यू है, अगले दिन उनको पेमेंट नहीं जाए. जैसे ही डेवलपर से पेमेंट आई, कमीशन है, वैसे रिलीज है. Which says a lot about the company, the promoter, the people who are involved. The majority जितने भी लोग हैं कंपनी में are more than 1 to 2 years old. जितने भी टिके हुए हैं, एक बार आप टिक गए कंपनी में, आप छोड़ के नहीं जाओगे, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ. गाली पड़ेंगी, कुछ भी करेंगे, बट आप उधर ही हो. बिकॉज पता है कि भाई यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ही खत्म होने वाले. बिकॉज इससे बेटर कहीं नहीं होने वाला है.
लोग आए हैं, लोग गए हैं, फिर वापस से लौट के आए हैं, पूरा मार्केट में हाथ पैर फैला के फिर आए कि भाई इससे बेटर कोई चीज है ही नहीं. So this says a lot about the company. It says a lot about the people who are being associated with the company. Yes. So my thing to anyone who wants to join DNS or is looking to join in the real estate here, just remember one thing, आपका पैसा कहीं नहीं जा रहा है, पैसा आपको मिलेगा. और अगर आप फैमिली टाइप ऑफ इन्वायरमेंट देख रहे हो जहाँ डंडे पड़ के नहीं काम होते हैं, काम हो रहा है बट अपने उस पे हो रहा है, you should join this company. Otherwise, if you want to live more of a corporate life, there are many better companies to go. But उधर आपको corporate life कुत्ते की तरह आपको बना के रखेंगे. So choices. So दानिश भाई, हमने इन 2 सालों में we have done miracles. अगर आप बोलो, हम top developers like Sobha, Danube, अजीजी, डमैक, हम टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं बेसिकली हर डेवलपर. और हमें हर बड़े डेवलपर से अवार्ड्स भी मिले हैं. तो एज अ वीपी जब आप वो अवार्ड्स रिसीव करने जाते हो तो तब क्या फीलिंग होती है? फीलिंग तो यार फहद ब्लैंक हो जाते हैं यार, पता नहीं होता है कि यार ये हुआ है हमारे साथ. आई मीन फहद, द फीलिंग इज अनरियल. मतलब आप समझो स्टेज पे जब ये हमारा नाम अनाउंस करता है DNS होम्स, टॉप हो गया, सेकंड हो गया, तो पता ही नहीं होता, ब्लैंक हो जाते भाई कि अरे ये हुआ है हमारे साथ. एंड मजे की बात है कि किसी को नहीं पता था हमारी कौन सी रैंकिंग होती है. वो बोलते हैं हाँ ठीक है, हम लोग को कुछ अवार्ड मिल रहा है, आ जाओ. कौन सी रैंकिंग हमें नहीं पता है, और अगर पता भी होता है अंशुल को, हम लोग को नहीं बताते. तो जब ये अनाउंस करते हैं इतने गूज़बम्स आ जाते हैं. नो वन कैन इमेजिन 2023 में हम लोग ने कंपनी फॉर्म की थी, स्टार्टिंग फ्रॉम अ टीम ऑफ आई थिंक 12 लोग थे इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. और आज हमारी 70-75 पीपल की स्ट्रेंथ हो गई है. तो गुड थिंग इज, अंशुल ये बोलता है ईच एंड एवरी पर्सन हैज वर्क टुवर्ड्स इट. सबने मेहनत की है. तो आप मेजॉरिटी में देखते होंगे, जो भी आप डेवलपर के पास जाओ, आपके गिने चुने 2-3 लोग होते होंगे अवार्ड रिसीव करने के लिए. हमारे उसके अंदर जब भी हम लोग का अवार्ड रिसीव करना पूरी झुंड पहुंच जाता है. बिकॉज अंशुल फील्स कि ईच एंड एवरी पर्सन हु इज पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन डिजर्व दैट अवार्ड एंड इट इज बिकॉज ऑफ देम दैट वी आर देयर. इसीलिए जब भी आप देखोगे मेजॉरिटी हमारे उसके अंदर अवार्ड्स के अंदर पूरी झुंड पहुंच गई होगी, सब तालियां मार रहे हैं एक दूसरे के लिए. सो इट इज वेरी वेरी क्रेजी कि ऐसे सोचो कि 2 साल के अंदर शोभा हो गया, डमैक हो गया, डैन्यूब हो गया, अजीजी भी हो गए. जहाँ हम लोग ने उंगली डाली है, हम लोग ने उसमें कॉन्कर करके हम लोग निकले हैं. क्यों? क्योंकि हम लोग काम को इबादत पकड़ के चलते हैं. अगर ये अंशुल ने बोले कि यही करना है तो मतलब यही करना है. कैसे करना है वो नहीं पता है, बट करना है हम लोग को. रिसेंटली आपको एक बताता हूँ, सुबह में हम लोग सुबह कुछ फोकस ही नहीं करते थे. कुछ नहीं सुबह का एज भी नहीं पता था हम लोग को. ओके. अंजुला ने बोले दैट वी वांट टू डू दिस. सुबह में हम लोग को इनर सर्कल, उसके अंदर हम लोग को घुसना है, करना है हम लोग को. इफ यू वोंट बिलीव इट, कुछ ही महीने के अंदर लास्ट मंथ इन अक्टूबर वी वर द नंबर 1 एजेंसी ऑल अक्रॉस UAE. Number 1 agency in Sobha. Very big thing. It is a very big achievement. And why has that happened? Because of each and every person who's working in the organization. And I know for a fact, हम लोग जहाँ पे भी हम लोग उंगली डालेंगे, हम लोग उस पे फोकस करेंगे, we will fly out with flying colors. जो भी आप हो, इतना सब कुछ अचीव कर चुके हो, you are a multi-millionaire, you are a VP of top real estate broker company of Dubai, DNS. तो आप अपने यंगर सेल्फ को क्या एडवाइस देना चाहते हो? यंगर सेल्फ को ये एडवाइस देना चाहूंगा, भाई तो पहले क्यों नहीं आया रियल एस्टेट में? अगर पता होता है ऐसे पैसे होते हैं तो यार मैं तो ग्रेजुएशन करके भाग के आ जाते. ऑन अ सीरियस नोट कि बस अल्लाह पे भरोसा रखो. अल्लाह वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज. और मैं कैसे रहा हूँ मैं जानता हूँ, कैसे मैंने जर्नी स्टार्ट किया है मैं जानता हूँ. बट आई एम हियर क्योंकि मुझे यकीन था अल्लाह पे, मुझे भरोसा था कि वो मायूस नहीं करेगा. यस, लेट करेगा जो भी करेगा, बट यस हाथ पकड़ के आगे चलेगा.
So I would tell my younger self, let hardships come. जितनी भी मुश्किलात आई हैं, well and good, but always have faith. Allah got me, कहीं ना कहीं से जरिया बनाया था. अंशुल को जरिया बना दिया मेरे लिए. He got Anshul in my life, he got Akanksha in my life. So वो ही जरिया पैदा किए. As a VP of the company, आने वाले 5 सालों में आपको क्या लगता है कि like what will be the future for DNS? See, we've got very, very big and grand plans for DNS. We want to scale DNS to another level. Okay. Selling good developers, selling good things to clients across the globe. Okay. Which is the reason why कि हम लोग local भी करते हैं, and we've got a good profile international as well, where we organize roadshows. Okay. We've got different people who are going in different subcontinents, projecting Dubai, projecting DNS. अगर कोविड नहीं आता, आपके रेस्टोरेंट सही चल रहे होते, सब कुछ सही चल रहा होता है आपके बिजनेस को लेके, तब क्या लाइफ इमेजिन करते हैं आप अपनी? भाई आज ये सब देख लिया है, प्लीज पुराने जमाने के बारे में मत पूछ कर कि अगर आगे ये नहीं होता तो क्या कर रहा होता. बट अगर कोविड नहीं आता तो अभी भी शायद बैंगलोर में चला रहा होता. I wouldn't know what money is. I wouldn't know what success is. Probably I would have been successful there as well. But जो आज देख रहा हूँ, now when I am sitting here across the table giving an interview, talking about my life, but I'm very happy with how Allah has shaped my life to be. And yeah. So thank you so much दानिश भाई for this. Like खुद आपको जान पाया और होपफुली लोग भी जानेंगे, मतलब क्या एग्जैक्ट जर्नी है और क्या लोग फील करते हो या आप क्या फील करते हो DNS के लिए. और विश यू अ वेरी सक्सेसफुल करियर अहेड ऑल्सो. और ऐसे ही लगे रहो, ऐसे ही करते रहो, इंशाल्लाह सब कुछ लाइक बढ़िया हो. Thank you so much. Thank you Fahad for having me here. It's been very good sitting and reliving our times together. हमारी जर्नी कैसे DNS से स्टार्ट हुई थी, मेरी रियल एस्टेट की जर्नी कैसे हुई थी. बट सिर्फ एक थी, आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग बिफोर आई यू कैन शट ऑफ द कैमरा, कि जहाँ पे भी जो भी कर रहे हो आप, ईमानदारी से करो. जहाँ पे भी आप करो, वट एवर यूर डूइंग, जस्ट हैव फेथ इन अल्लाह. एंड सिर्फ ईमानदारी से आप काम करो, मेहनत करके काम करो. इतना पैसा कमाओगे ना आप लोग कि देयर इज नो डर्थ ऑफ इट. एंड स्पेशली टू ऑल माई कलीग्स एट DNS, माई टीम किंग मेकर्स, I want to thank you guys for being a part of my life, for making me where I am today. And I want to thank Anshul and Akanksha from the bottom of my heart, कि आपकी वजह से जो इज़्ज़त मिली है, जो मुकाम मिला है, I just thank and pray to Allah कि आपको और सक्सेस दें, आपको और मेरे जैसे दानिश और फहाद दें और अकील दें और फजल दें, कि आपके पीछे पीछे चलते रहेंगे और आपके पीछे पीछे पैसे कमाते रहेंगे. सो थैंक यू सो मच.